Okay, yes, I guess you can hear me from Mohammad Haris and Mustafa. Okay, good. Done. जा रही है आवाज. Okay, students, you must be having a nice time at home, लेकिन पढ़ाई भी थोड़ी थोड़ी ज़रूरी होती है और आजकल तो पढ़ने के आदी नहीं रहे होगे आप लोग मुझे लगता है. तो बहरहाल होप टू सी यू इन द कॉलेज अगेन, लेकिन टिल द टाइम यू आर हेयर छोटी छोटी मोटी मोटी अच्छी अच्छी बातें पढ़ लेते हैं. अभी you're in second year. First, let me introduce myself as a senior registrar in the Department of Surgery. My subspecialization is plastic surgery. And today, one of the important topics we would be discussing is burns. Burns इसलिए अच्छा topic है कि most of the people you come across in your daily life, your relatives, the person working in your kitchen, your next door neighbor, and besides these, all these people, one of the major chunks of patients presenting to you as a doctor in accident and emergency are comprised of burns. So burns is quite a common injury. It is one of those injuries which happens in a matter of few minutes and seconds, but leaves a sequel of destruction and years of rehabilitation and coming back to normal behind it. So an injury happening in minutes to seconds, leaving a sequel and the patient suffering for years. Normally in disease patient, what you come across is a person who's having a heart problem, who's having kidney failure, liver failure, or certain other problems. The patient and the people, his loved ones or her loved ones and there are people around him, they are sort of mentally prepared that there is something going wrong and it is getting deteriorating. But for a burns patient, a perfectly normal person, a perfectly normal person doing his daily activity, an active member of the society, doing his part and contributing to the community. Just take an example, a normal person walking around, going for work from his home, and there is a, say, a blast. There's a bomb blast. नॉर्मल बंदा था, जा रहा था, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, गया 5 सेकंड के अंदर भी वो मेरे ख्याल से ब्लास्ट रेडियस के अंदर आया होगा तो ही हैज बर्न्स. सब कुछ सिनेरियो चेंज हो गया. पहले ज़िंदगी बचाने का, फिर उसके बाद what will be his life afterwards, how will we you do the reconstruction, how will you make him an effective member of the society again. So all this thing, this takes a lot of money, a lot of effort, multidisciplinary team, and lots of commitment on the part of the person suffering and his family to make him an active member of the society again through rehabilitation. And rehabilitation not only means the physical rehabilitation, it is also rehabilitation of the mind. You have to adjust to the new change circumstances you have been thrown into. So burns, what is burns? सबसे पहले सिर्फ जल जाना burns नहीं होता. आग से जलते हो, इसके अलावा भी बहुत सारे burns होते हैं. Burns can be chemical burns can be cold burns like frostbite, burns can be radiation burns from nuclear fallouts or radiations, sunburns from excessive exposure to the sun, and then, of course, warm, hot liquids, scald burns, then dry burns, and then flame burns. Chemical strong alkalis, strong acids, they also produce burns. So saying that ke aag lag jana is not the right term to define burns scientifically as a doctor or as a medical student. Burns is the all those factors or all those agents from exogenous source जो बाहर से आते हैं and they result in coagulative necrosis of the tissues. जो चीज़ भी tissues और cellular level पे coagulative necrosis करेगी, that will ultimately result in burns. तो इसलिए सिर्फ heat is not only the part where we say it's burns. All right. So in this lecture we'll be seeing कि introduction burns है क्या, इसको आप कैसे diagnose करते हो, how does it happen, क्या changes आती हैं body में, what are the stages of burns, और at your level not the complete management लेकिन acute management अगर आपको फौरन कोई नजर आता है तो how to go about your business, how to give him the basic life support till the definitive support arises or arrives. ठीक है.
So this is what we'll be discussing. So coming to the introduction, wait, how do you do that? All right, burns. हमने बात किया है कि burns is a tissue injury resulting from direct contact with hot liquids, हो सकते हैं hot gases हो सकती हैं, और hot surfaces हो सकती हैं, chemicals हो सकते हैं, strong alkalis and strong bases हो सकते हैं, acids हो सकते हैं, electricity burn हो सकता है, radiation burn हो सकता है. So all these इनको burns, सबको burns क्यों है कि they all cause coagulative necrosis of the skin and underlying tissue. अब सिर्फ tissue याद रखो. Any agent, exogenous agent causing coagulative necrosis of the tissue results in burns. टिश्यू स्किन भी हो सकता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू भी हो सकता है, मसल भी हो सकता है, बोन भी हो सकती है, नर्व्स भी हो सकती हैं. It can be any part of any tissue of the human body. So burns का ये होता है कि इसकी severity कैसे डिपेंड करती है. एक दो तीन चीजें मेजर होती हैं कि what was the intensity of that agent, concentrated acid था या तेज ब्लास्ट थी, स्ट्रॉन्ग हीट थी या माइल्ड सनस्ट्रोक वाली कम गर्मी थी. इंटेंसिटी कितनी थी, ड्यूरेशन कितनी थी, पेशेंट का एक्सपोजर कितना रहा, और कुछ होती हैं कि देयर आर सर्टेन डेंजर एरियाज जिसमें हम कहना होता है विच विल बी कमिंग टू लेटर. लेकिन कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, burn injuries are one of the most commonly and frequently encountered injuries, accidental or traumatic injuries. They can be homicidal as well, which people encounter. 10% of people admitted to hospital each year. आप देखो, 2 million persons are burnt in United States each year, and 50,000 of them need hospitalization. So it's a big number. It's a common problem, and as a doctor, you'll be coming across it more often than you expect. So अब बर्न आ गया, आपने एक दफ़ा देख लिया कि बर्न, अब जब आपको समझ लग जाएगी बर्न होता क्या है, बर्न कितनी इंटेंसिटी क्या है, बर्न ज़्यादा बर्न है, कम बर्न है. लेमन टर्म में तो ये बात करते हैं ना, इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं कि बॉडी सरफेस एरिया कितना है, कि एक्सटेंट ऑफ बर्न कितना है, कि कितना एरिया हुआ है, और दूसरा ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द बर्न. ठीक है, सुपरफिशियल है, ऊपर सिर्फ एपिडर्मिस हुआ है, सुपरफिशियल डर्मिस हुआ है, डीप डर्मिस हुआ है, फुल डर्मिस हुआ है, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंचा है, नीचे मसल्स तक पहुंचा है, बोन्स तक इवन पहुंच जाता है. तो दो चीजें, एक के स्प्रेड कितना है विच इज द एक्सटेंट ऑफ बर्न, और दूसरा के डेप्थ ऑफ बर्न विच इज द सेवेरिटी के कितनी ज्यादा लेयर्स, कितना डेप्थ इन्वॉल्व हुई है. और ये दोनों चीजें ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और इन सारी चीजों पे डिपेंड करती हैं. ठीक है. यूजुअली अब होता है हॉस्पिटल क्राइटेरिया क्या होता है, हॉस्पिटल के कौन से बर्न को हमने एडमिट करना है, कौन से को नहीं करना. यूजुअली एक्सट्रीम ऑफ एजेस है, मतलब लेस देन 10 years एंड मोर देन 50 years में अगर 10% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट कि कितना परसेंटेज है बर्न्स का. ठीक है, और डेप्थ का भी हम आगे आपको मैं बताऊंगा. ये आपको कैलकुलेट करना आ जाए इन सेकंड ईयर, आई थिंक यू हैव डन अ गुड जॉब. So coming to the topic again, second degree, extent आपको पता चलता है कि 10% अगर हो बूढ़े में, बच्चों में 50 से ऊपर, 10 से नीचे, तो आप हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे. बिटवीन 10 years एंड 50 years अगर 20% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, तो फिर आप हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं. लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ के आपके 10 और 20% बॉडी सरफेस एरिया वाला रूल अप्लाई नहीं होता. यू डोंट स्टिक टू दैट रूल. Where does that apply? Where there are important areas. For example, if inhalational burn है, बाहर आपका चाहे 1% burn भी है बॉडी के ऊपर, लेकिन you have inhaled hot gases, आपका suspicion है, तो then you have to admit, क्योंकि उससे क्या होगा, hot gases और कार्बन मोनोऑक्साइड जाने से और सूट और डर्ट पार्टिकल्स अंदर जाने से क्या होता है, आपका पल्मोनरी एडीमा हो जाता है, लेरिंजियल एडीमा हो जाता है, एल्वियोलर डैमेज हो जाता है. लेरिंजियल एडीमा होने से क्या होता है कि एकदम आपका रेस्पिरेटरी एयरवे जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या कि इट कैन बी ब्लॉक्ड एनी मोमेंट, एंड आपका सांस रुक जाए तो इट डजंट गिव यू इवन अ फ्यू मिनट्स. इट्स एन इमरजेंसी. इसलिए जो 10% से कम भी है, बेशक 5%, 1% से भी कम है, लेकिन उनमें आपने पहचानना होता है कि इनहेलेशनल इंजरी के लिए सस्पेशन रखना है. कैसे पता चलेगा इनहेलेशनल इंजरी का? द पॉइंटर्स टुवर्ड्स इनहेलेशनल इंजरी आर, one is the mode of injury. The injury will have happened in a closed quarter, in a closed space.
जहाँ ब्लास्ट या बिग फायर होगी। आउटसाइड हो तो आपको चांसेस कम है कि आपने हॉट एयर इतनी ज़्यादा इनहेल की हो जितनी आप एक कमरे में बंद हो और वहाँ आग लगी हुई हो। सेकेंड इज सर्टेन थिंग्स पॉइंट टूवर्ड्स इट कि अगर उसे पेशेंट को आपके पास आया है तो ही इज़ हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इसका मतलब है कि उसको अगर स्ट्राइडर हो रहा है, स्ट्राइडर मतलब कि सांस लेते हुए आपकी आवाज़ आ रही है जो कि लेरेंजियल एडीमा, वोकल कॉर्ड्स का एडीमा, इन चीज़ों को कर रहा है, विच इज़ एन इम्पीडिंग इमरजेंसी के किसी वक्त भी एयरवे क्लोज हो सकती है। ठीक है, तो अगर पेशेंट भारी है, उसकी आवाज़ भारी हुई हुई है, वो आवाज़ ज़्यादा खींच के बात कर रही है, हैज़ टू ड्रॉ द ब्रेथ, ही इज़ गैस्पिंग फॉर एयर, ही इज़ हैविंग डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, और उसके नाक के बाल जले हुए हैं, नाक के इर्द गिर्द सूट और कोल लगा हुआ है, उसके मुंह के अंदर भी सूट और डर्ट और ग्रेट है जिससे आपको जले होने का आप कर रहा है। इफ़ ही हैज़ फेशियल हेयर, अगर वो जले हुए हैं, eyebrows जली हुई है, eyelashes जली हुई है, if he's a man, in case of a man अगर उसके beard है या mustaches हैं, if they are burnt, तो all they indicate towards the presence of an inhalational injury, और ऐसे पेशेंट्स को आप घर नहीं जाने देते हो। You don't wait for the respiratory compromise to happen, you detect it early, और अगर early करके आप पहले ट्रैकियोस्टमी कर दो तो ट्रैकियल एडीमा होगा तो वो तो एयर बाईपास हो जाएगी, तो सांस तो कम से कम नहीं रुकेगा। सो यू एडमिट दीज पेशेंट्स, इनको पहले आप ऑक्सीजन देते हो 100% के उनकी ऑक्सीजन ड्राइव पूरी हो, और अगर ना हो तो फिर आप ट्रैकियोस्टमी भी आपको करनी पड़ जाती है टू कीप द एयरवे पेटेंट। ओके, वन क्राइटेरिया जहाँ ये फिल नहीं होता, इनहेलेशनल इंजरी है तो तब आपने दाखिल करना ही करना है। फिर बहुत कुछ डेंजरस एरियाज होते हैं, उसका एज से ताल्लुक नहीं। फॉर एग्जांपल, आपके नोज, माउथ, आईज, ईयर्स, हैंड्स, जेनिटेलिया, इन जगहों पे अगर आपके बर्न हो हैंड पे, क्योंकि आपने सारी उम्र काम करना होता है कि एक आपकी इंडेक्स फिंगर या एक अंगूठा भी खराब हो गया तो हाथ का आपका बहुत ज़्यादा काम फर्क पड़ जाता है, क्योंकि एक छोटा सा बर्न, एक उंगली किसी एक बंदे की से लिटिल फिंगर पे, टिप पे थोड़ा सा बर्न है, एक मैनुअल वर्कर के लिए या एक बंदा है जो कि टीवी के आगे बैठ के उसने बात करनी है, लेक्चर देने, उसके लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो, but it would be very important for a person who is, say, a surgeon. He has to use all his fingers, all the sensations. उसके लिए it's a career decision, make or break. Similarly, if a person is a pianist, piano बजाता है, गिटार बजाता है, तो उसकी एक उंगली पे छोटी सी भी चोट लगी होगी ना, तो that has dire consequences. बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ओके, एंड तो इन एरियाज पे जब होता है तो इनका आपने देखना होता है। स्पेशली दूसरी चीज़ होती है इलेक्ट्रिकल इंजरी। इलेक्ट्रिकल इंजरी का ये मैकेनिज्म होता है कि ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर। अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ लेट मी नो वे द चैट अगर आपको आवाज़ आ रही है तो। यस और नो वुड डू। ओह, आ रही है। ओके, राइट, थैंक यू गाइस। आ रही है उनको आवाज़?
बच्चे कह रहे हैं कि आ रही है। ऑल राइट, तो एक दफ़ा फिर यस कर दो। ओके या ठीक है। तो होता ये है कि अब हमने बात कर रहे थे इनहेलेशनल इंजरी। आई होप यू हर्ड इट ऑल। इनहेलेशनल इंजरी जितनी मर्जी बेशक एक आधा परसेंट हो। दूसरा है कि बर्न, इलेक्ट्रिक बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बचपन में फिजिक्स और केमिस्ट्री हमने पढ़ी थी, साइंस भी पढ़ी थी। तो जब भी बर्न होता है तो वो क्या होता है कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान में करंट फ्लो करता है। तो बॉडी के से में कहीं से भी करंट एंटर हुआ और उसने निकलना है। तो यूजुअली देयर इज एन एंट्री वूंड एंड एन एग्जिट वूंड। नॉर्मली एंट्री वूंड जो होता है वो छोटा सा पंक्चर होल की तरह का होता है और उसके इर्द गिर्द आपको इतनी ज़्यादा बर्न्स नज़र नहीं आ रहे होते। एग्जिट वूंड थोड़ा सा बड़ा होता है और उसके इर्द गिर्द आपको थोड़ा सा टिश्यू ज़्यादा जला हुआ नजर आता है, लेकिन दिस इज़ वेरी डिसेप्टिव। दोनों साइड्स पे जो वूंड होता है ना, वो सामने से देखने में आपको नज़र आ रहा होता है कि जी छोटा सा वूंड है, लेकिन अंदर जो है ना सारा जला हुआ होता है। अंदर जला हुआ कैसे हो जाता है, हाउ डज इट हैपन? पॉइंट इज के द इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स द बॉडी फ्रॉम द पॉइंट जहाँ से एंटर हुआ, जहाँ से वो पिनोल किया या पंक्चर किया ना, दैट्स कंसिडर्ड द टिप ऑफ द आइसबर्ग। वो टिप है, उसके नीचे सारी इंजरी हुई हुई होगी। अंदर कैसे अंदर हुई हुई होगी? जो जो पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टेंस आते हैं ना, वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिकल करंट ट्रेवल कर रहा है बॉडी में से निकलने के लिए। पाँव के थ्रू ज़मीन में जाके अर्थ होकर निकल जाएगा। तो जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा है, वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ उसको रेसिस्टेंस मिलेगी टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ ही डिसिपेट करेगा और वहाँ बर्न्स होंगे। कहाँ कहाँ उसे रेजिस्टेंस मिलेगी? जो टफ स्ट्रक्चर्स आते हैं बॉडी में। फॉर एग्जांपल स्किन आई, स्किन के बाद फैशिया आया, या आपका फेशियल कंपार्टमेंट होता है, फेशिया इज अ टफ स्ट्रक्चर। उसके बाद पेरियोस्टियम या बोन आई, ब्लड वेसल आई, कोई नर्व आई जहाँ रेजिस्टेंस। तो जो जो पॉइंट्स आएंगे उनको वो जलाता हुआ जाएगा, और इसलिए जो एक्सटेंट ऑफ बर्न्स विल बी मोर सिवियर देन व्हाट यू सी अपेरेंटली। ज़्यादा एक्सटेंसिव बर्न होंगे, लेकिन द इमीडिएट किलर इन इलेक्ट्रिसिटी बर्न इज योर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन ऑफ द हार्ट। एरिथमियाज चल जाते हैं। हार्ट हार्ट जो आपका बीट करता है, लुप डुप लुप डुप, वो नहीं होता। इरेगुलर इरेटिक कंट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट, कंडक्शन सिस्टम डैमेज। जिससे क्या होगा? प्री लोड बढ़ेगा, आफ्टर लोड बढ़ेगा, आपका हार्ट से ही पंपिंग, इफेक्टिव पंपिंग कर नहीं रहा होगा, ऑक्सीजन डिमांड गई, एंड अगेन इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो हमेशा इलेक्ट्रिक बर्न वाले पेशेंट को ज़रूर एडमिट करो, एटलीस्ट उसकी ईसीजी ज़रूर करो, एंट्री एग्जिट वूंड को अच्छी तरह ढूंढ के आइडेंटिफाई करो एंड मैनेज द पेशेंट अकॉर्डिंगली। ठीक है। उसके बाद केमिकल इंजरीज में भी आपको इसी तरह ध्यान रखना होता है। इस तरह हैंड, फीट, जेनिटेलिया जो आपको बताया ना कि बेशक थोड़ा एरिया, सरफेस एरिया का बर्न भी हो तो वो इम्पोर्टेंट है। इस तरह केमिकल जो होते हैं ना, कि बाकी बर्न है ना, फायर है और उस पर तो आप पानी फेंक दो, वॉश विद कोपियस वाटर, और ये वो। केमिकल बर्न्स में आपने पानी नहीं फेंकना होता, आप ज़्यादा एरिया जला देते हो। जब तक आपको पता ना हो केमिकल कौन सा है, उस पर पानी नहीं फेंकते। ठीक है। और इनहेलेशनल इंजरी की हमने बात कर दी। और जो लोग बेशक वो 10 साल से बड़े हैं और 50 साल से छोटे हैं, यंगस्टर्स में आते हैं, फिट लोगों में आते हैं, लेकिन उनको कोमॉर्बिडिटीज हैं। फॉर एग्जांपल किसी को अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, किसी को रीनल फेलियर है, किसी को हेपेटिक फेलियर है, किसी को ल्यूकीमिया की वजह से है, कोई ब्रेस्ट कैंसर की वजह से कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ले रहे हैं। और ऐसे पेशेंट को अगर 10% मतलब थोड़ा बर्न भी हो तो इनको आप एडमिट करते हो, बिकॉज दीज आर हाई रिस्क क्राइटेरिया पेशेंट्स, और इनको यू डोंट लेट देम गो होम। और इसके अलावा आप किसको, हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड आप और किसको घर नहीं जाने दे सकते, जिसको बेशक बर्न्स कंपैरेटिवली कम है, लेकिन यू आर नॉट कंफर्टेबल सेंडिंग द पेशेंट होम। एंड व्हाई आर यू नॉट कंफर्टेबल सेंडिंग द पेशेंट होम? द रीजन बीइंग के देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ हिम और हर। घर ज़्यादा दूर है हॉस्पिटल से, एम्बुलेंस जल्दी नहीं पहुंच सकती, या बंदा बहुत बूढ़ा है, या वो इतना मेंटली चैलेंज्ड है कि वो खुद से आपको हेल्थ अथॉरिटीज़ को इन टाइम इन्फॉर्म नहीं कर सकता, कोई केयर टेकर उसके पास नहीं है, तो फिर आप ऐसे लोगों को नहीं जाने देते, आप उनको ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट कर लेते हो। ठीक है। तो बर्न्स में ऐसे लोगों को आप एडमिट करते हैं। ये छोटी छोटी आपको मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं। ओके, नाउ वेट टिल आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू डायग्नोज, वो हम यही बात कर रहे थे। डायग्नोज हम ऐसे करेंगे, वेट प्लीज, या
हाँ, हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे कि हमने किसको एडमिट करना है, किसको नहीं करना, एक्सटेंट ऑफ बर्न क्या है, कितना ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, कौन से डेंजरस एरिया इन्वॉल्व है जो हमने बात करी। दूसरा है डेप्थ ऑफ बर्न, सुपरफिशियल बर्न है, बिल्कुल ही सुपरफिशियल बर्न है, दरमियाना सा बर्न है या डीप बर्न है। यूजुअली जो होता है, जो बर्न्स होते हैं वो it's not always strictly as a mathematical rule that it is second degree burn, no, it is third degree burn, it is first degree burn. There is always a significant overlap. अब आप देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपका हाथ जला है, उंगली जली है, तो उसका एक एरिया होगा जहाँ आपका बर्न ज़्यादा होगा, उसके साइड पे कुछ एरिया होगा जहाँ बर्न कम होगा, उसके साइड पे एरिया होगा जहाँ बर्न उससे और ज़्यादा कम होगा, जहाँ हीट बहुत कम पहुंची है वहाँ सिर्फ रेडनेस होगी, और उससे आगे आप चले जाओ तो स्वेलिंग भी नहीं होगी, रेडनेस नहीं भी होगी, नॉर्मल स्किन आ जाएगी. सो देर इज ऑलवेज अ कंसिडरेबल ओवरलैप between the depth of the burn, कि it's a superficial burn or deep burn. And then location हमने बात कर ली कि अगर वो dangerous areas कौन से हैं, और cause में हम electric burn की तरह बात कर रहे थे. Even if you're struck by lightning, you have to get admitted, okay? और and lightning does strike twice. पुरानी ज़माने थे कि lightning never strikes twice, okay? तो अब लोकेशन हमें पता चल जाएगी, कॉज हमें पता चल जाएगा, एक्सटेंट ऑफ बर्न हमें, आपको मैंने बताया कि एक फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा, उसे पता चलेगा कितना सरफेस एरिया इन्वॉल्व है. और डेप्थ का देखने के लिए भी हमारे पास सर्टेन क्राइटेरिया हैं जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द बर्न, व्हिच आई विल बी टेलिंग यू इन द लेटर स्लाइड्स. ठीक है, अब कमिंग टू द एक्सटेंट ऑफ द बर्न, द फर्स्ट पॉइंट कि कितना बर्न है. हम कह रहे थे ना कि बड़ों बच्चों में 10% भी बॉडी सरफेस एरिया बर्न हो तो हम उनको एडमिट कर लेंगे, और 10 से 50 के दरमियान में 20% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया बर्न हो तो तब हम एडमिट करेंगे. तो ये हमें पता कैसे चला कि कितना सरफेस एरिया बर्न है. एक बंदा आया, उसके ऊपर आप वुमन वर्किंग इन द किचन स्पिल्स हॉट वाटर ओवर हरसेल्फ, देच की उठाई, वो शिफ्ट करते हुए गिर गई ऊपर. तो अब सामने भी आपके टॉर्सो पे भी, चेस्ट पे भी, बेली पे भी आपके गिरा है, और पाँव पे भी गिरा है. कहीं ज़्यादा जला है, कहीं कम जला है. तो अब आप देखो कि कैसे कि कितना परसेंटेज एरिया इन्वॉल्व है. उसके लिए सबसे वाइडली एक्सेप्टेड रूल टू कंसिडर द बॉडी सरफेस एरिया बर्न्ड is the Wallace rule of 9. Wallace, William Tell वाला, WALLACE Wallace. तो Wallace rule of 9, Wallace rule of 9 है क्या? अब वो मैं आपको दिखाता हूँ. इससे सबसे ज़्यादा आसान है वो पिक्चर से समझना. ये बच्चों के लिए यूज़ नहीं होता, ये एडल्ट्स के लिए यूज़ होता है. बच्चों के लिए एक और चार्ट होता है, बड़ों में ये होता है कि आपका जो है ना 9 का फिगर परसेंटेज आप रख लो. इस फिगर में देखो, फ्रंट ऑफ योर हेड एंड नेक इज 9, बैक ऑफ योर 4.5, एंड बैक ऑफ योर हेड एंड नेक इज 4.5. यानी आपका सामने और पीछे सर और गर्दन जो है 9% है. इसी तरह आपका राइट अपर लिम सामने पीछे मिला के 9 है, लेफ्ट अपर लिम सामने पीछे मिला के 9 है, आपका चेस्ट सामने से 9 है, चेस्ट पीछे से 9 है, एब्डोमेन सामने से 9 है, एब्डोमेन बैक से 9 है, लेग अपर लिम जो था ना वो पूरा मिला के 9 था ना. लेग में ये है कि लोअर लेग में कि सामने से 9, बैक से 9, इंक्लूडिंग ग्लूटियल एरिया. इसी तरह दूसरी तरफ सामने से 9, बैक से 9. और पेरिनियल या जेनिटल एरिया जो है दैट इज डेजिग्नेटेड एज 1%. तो सारे 9 चल रहे हैं. हेड एंड नेक इज 9, अपर लिम, ईच अपर लिम इज 9, front of chest is 9, back of chest is 9, front of abdomen is 9, back of abdomen is 9, front of the lower limb is 9, back of the lower limb is 9, each of them. Okay, ये है वॉलेस रूल ऑफ 9, और ये ह्यूमन एडल्ट्स में होता है, और ये सबसे ज़्यादा वाइडली इंटरनेशनली यूज एंड एक्सेप्टेड चार्ट है टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बर्न, सरफेस एरिया कितना इन्वॉल्व हुआ है. सो ये लर्न कर लो, सारी उम्र काम आएगा. वॉलेस रूल ऑफ 9, दो चीज़ें याद कर लो. वॉलेस रूल ऑफ 9 बर्न्स में, दूसरा कि बर्न्स की डेप्थ कितनी है वो देखने के लिए, सुपरफिशियल है, डीप है. और तीसरा एक होता है फॉर्मूला कि अभी जलेगा तो आपको पता चल गया इतना गहरा बर्न है, इतना सरफेस एरिया बर्न है, देना क्या है. देने में है कि उसको सबसे ज़्यादा, क्योंकि जलने से ना उसका जिस्म में से फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो फ्लूइड कितना देना है वो हम एट द एंड जाएंगे. वो ना भी आपको आए, आपको परसेंटेज और डेप्थ ऑफ बर्न जरूर आना चाहिए, क्योंकि अभी आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो ना, स्किन पढ़ रहे हो. स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी.
ठीक है, और स्किन की इंजरीज बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए आपको आई डोंट नो समबडी जॉइन इन और व्हाट हैपेंड। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? इधर कुछ आना शुरू हो गया। हेलो हेलो, हेलो, आ रही है आवाज़? थैंक यू। ओके, तो ये वॉलेस रूल ऑफ 9 हो गया। एक और भी है, एक वेट, हाँ, देयर इज अनदर क्राइटेरिया, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। दैट इज रूल ऑफ पाम। आप अपनी क्लोज फिस्ट बनाओ, मुक्का, या आपका जो पाम का साइज है, उंगलियां छोड़ के हथेली का जो साइज है, दैट इज रफली इन एन एडल्ट 1% ऑफ योर बॉडी एरिया। ठीक है, हथेली इज 1% ऑफ योर बॉडी सरफेस एरिया। तो ये रूल ऑफ फिस्ट या रूल ऑफ पाम भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वॉलेस रूल ऑफ 9 इज द वन विच यू हैव टू एम फॉर। दैट इज फॉर द बॉडी एक्सटेंट ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन द बर्न। नाउ कमिंग टू द डेप्थ ऑफ द बर्न, जब हम दूसरी बात कर रहे थे, स्किन है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, मैंने भी बात की। सबसे ऊपर एपिडर्मिस होता है, उसके बाद डर्मिस होता है, उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, उसके बाद नीचे मसल्स आ जाते हैं, वेसल्स आ जाती हैं, बोन्स आ जाती हैं, सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद डर्मिस जो है ना, डर्मिस इज द लाइफ पार्ट ऑफ द स्किन। डर्मिस की जो नीचे वाली होती है रेटिकुलर लेयर होती है, ऊपर वाली पेपिलरी लेयर होती है डर्मिस में, ऐसे ही है। और इसके अंदर आपस में क्या होता है, स्किन के अंदर ना स्किन के अपेंडेजेस भी होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टीरियोल्स होते हैं। ये सारे टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए भी होता है ना, कि गर्मियों में बंदा लाल हुआ होता है कि कंडक्शन बाहर की तरफ हो रही है, सर्दियों में स्किन पीली हुई हुई होती है क्योंकि बॉडी हीट कंजर्व कर रही होती है थ्रू स्किन। तो अगर सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं जो कि सिर्फ डर्मिस तक हों, ठीक है, डीप बर्न्स होते हैं जो डर्मिस से नीचे चले जाएं, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक चले जाएं। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री में इनको किया जाता है। सिर्फ एपिडर्मिस हो इन्वॉल्व, डर्मिस भी पुरानी है, सिर्फ डर्मिस तक सेक पहुंचा है, एपिडर्मिस और डर्मिस की सिर्फ सुपरफिशियल लेयर पहुंची है, तो वो होगा सुपरफिशियल फर्स्ट डिग्री बर्न, सॉरी सुपरफिशियल बर्न होगा। सेकंड डिग्री बर्न जो होता है ना, उसमें डर्मिस इन्वॉल्व होगी। सेकंड डिग्री बर्न को दो में आगे फर्दर हम डिवाइड करते हैं, सुपरफिशियल सेकंड डिग्री बर्न या डीप सेकंड डिग्री बर्न। उसमें यह कि अपर पेपिलरी डर्मिस तक आप हैं या लोअर रेटिकुलर डर्मिस तक बर्न आया है। और थर्ड डिग्री बर्न ये है कि पूरी डर्मिस की लेयर्स को बर्न करके वो हाइपोडर्मिस यानी सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंच जाए, तो थर्ड डिग्री बर्न हो जाता है। सम पीपल एडवोकेट अगर बोन्स और वो नीचे टफ स्ट्रक्चर्स बोन्स तक आपकी चार हो जाए, कोयला बन जाए, तो दे समटाइम्स दे कॉल इट एज फोर्थ डिग्री बर्न। ठीक है, लुक एट द नेक्स्ट, ये दिस स्लाइड, काली ये जो तीन पट्टियां नजर आ रही है ना, वन first degree only confined to the epidermis and only the superficial part of the dermis. सेकेंड डिग्री बर्न ये है कि सेकेंड डिग्री बर्न का आगे आ जाता है सुपरफिशियल एंड डीप। सेकेंड डिग्री सुपरफिशियल बर्न जो है बाहर वाले पेपिलरी डर्मिस तक है। सेकेंड डिग्री डीप जो है वो है डर्मिस के रेटिकुलर लेयर तक। और फिर थर्ड डिग्री है जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी चला गया, दैट इज थर्ड डिग्री बर्न। ये तो पता चल गया, देख के कैसे पता चलेगा डर्मिस, ये तो नहीं नजर आ रहा होता ना कि एपिडर्मिस कहाँ खत्म हो रहा है, डर्मिस कहाँ शुरू हो रहा है। व्हेन यू लुक एट अ बर्न पेशेंट, आपको तो पेशेंट चीखें मारता हुआ नजर आ रहा होता है। हाँ, चीखों से याद है एक और इम्पोर्टेंट थिंग, इट्स अ पैराडॉक्स। यूजुअली द सुपरफिशियल बर्न्स दे पेन लाइक हेल, उनकी बहुत ज्यादा दर्द होती है। क्यों? क्योंकि नर्व एंडिंग्स इंटैक्ट होती हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं डर्मिस में, और जस्ट बिलो द डर्मिस और डर्मिस तक जितना स्किन के करीब हो गए उधर ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होंगी, इसलिए सुपरफिशियल बर्न ज़्यादा पेनफुल होते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न ज़्यादा पेनफुल होता है। थर्ड डिग्री बर्न अगर नीचे अगर सिर्फ उसमें चले जाए तो थर्ड डिग्री बर्न ऑलमोस्ट पेनलेस होता है। उसकी साइडों पे जहाँ फर्स्ट डिग्री बर्न्स आ जाते हैं, जहाँ पूरा डेप्थ में नहीं है, या पेरियोस्टियम आ जाए या नर्व टिश्यू आ जाए जो कि डायरेक्टली पेनफुल चीज़ें, उसके अलावा थर्ड डिग्री बर्न ज़्यादातर पेनफुल नहीं होते। ठीक है, so you look at this picture, first degree burn, second degree burn and third degree burn.
फर्स्ट डिग्री बर्न में आपको नजर आ रहा है रेडनेस है, स्वेलिंग है और एरिथीमा हो, स्वेलिंग होगी, पेन होगी, रेडनेस होगी और लॉस ऑफ फंक्शन होगा थोड़ी देर के लिए, जब तक दर्द रहेगी और स्वेलिंग रहेगी, और कुछ दिनों बाद जब ये स्वेलिंग वगैरह सबसाइड हो जाएगी तो जख्म सारा, द वुंड विल हील स्प्लेंडेडली एंड इट विल यूजुअली हील विदाउट एनी रेजिडुअल स्कारिंग, निशान नहीं पड़ेगा अगर आप सही ख्याल रखोगे तो। सेकेंड डिग्री बर्न में यह है कि पार्ट ऑफ डर्मिस इज इन्वॉल्व, मिनिमल स्कारिंग होगी लेकिन इट विल ऑलवेज लीव सम स्कार। थर्ड डिग्री बर्न में क्योंकि पूरे का पूरा डर्मल लेयर आपकी चली गई हुई है, नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू भी चला गया, हो सकता है कि बोन और मसल्स भी चले गए हो, तो थर्ड डिग्री बर्न विल ऑलवेज हील विद स्कारिंग लाइक सेकेंड डिग्री बर्न, but usually third degree burns in addition need some reconstructive measures and some other than simpler measures for the wound to heal। ठीक है, इतने आराम से फिर ये ठीक नहीं होते या बंद नहीं होते, काफी कुछ करना पड़ता है इनके साथ। ठीक हो गया, ये टेबल देख लेना, ये वही बातें जो मैंने आपको बताया कि पेपिलरी और रेटिकुलर डर्मिस में कहाँ तक क्या होना है क्या नहीं होना। इसलिए अब आगे ये मैं आपको ना थोड़ा सा डिटेल में और दिखाता हूँ। ये है ना फर्स्ट डिग्री बात हमने की थी, फर्स्ट डिग्री बर्न है, बिल्कुल सुपरफिशियल डर्मिस तक है या एपिडर्मिस तक इन्वॉल्व है ज़्यादातर। तो इसमें यूजुअली क्या होता है, ज़्यादातर ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है, सुपरफिशियल छाला सा, हल्का सा गर्म पानी आपके ऊपर गिरा है तो छाला सा बन जाता है, साइडों पे रेड हो जाता है, रेथमा हो जाता है, और बाद में उस वक्त तो लगता है कि पता नहीं कितना गंदा निशान बनेगा, छाले के नीचे क्या हो रहा होगा क्या नहीं होगा। अक्सर वो बड़ा अच्छा हील हो जाता है और बाद में आपको कुछ अर्से आफ्टर फ्यू मंथ्स आपको नजर भी नहीं आता निशान। सो द फर्स्ट डिग्री बर्न इज गोना cause you pain like hell. It will result in blister formation, local erythema, and it will be painful, but it's going to heal well, and it usually doesn't leave residual scarring if managed properly. अब आ जाओ सेकेंड डिग्री बर्न्स में। सेकेंड डिग्री बर्न्स की हमने बात की थी, सुपरफिशियल और डीप दो पार्ट है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट इसमें डर्मिस तो इन्वॉल्व है ना, इसलिए डर्मिस इन्वॉल्व हुआ है ना तो देयर विल बी सम डिग्री ऑफ स्कारिंग होगी। अब इस पिक्चर में देखो, फर्स्ट डिग्री में उसमें छोटा सा एक ही था ब्लिस्टर था, इसमें तो काफी बड़ा सा ब्लिस्टर है, और इसके नीचे जब आप हटाओगे ना इसको तो इसके नीचे आपको क्या नजर आएगा, ये इस टाइप की पिक्चर नजर आएगी, जो कि स्किन है ना ये भी अंगूठे के पास आपको रेड नजर आ रही है जहां से आपने ब्लिस्टर छीला हुआ है। इसमें और आम एरेथीमा में जो फर्स्ट डिग्री की रेडनेस थी जो साइड पे, क्या फर्क होगा, वो वाली रेडनेस को आप दबाओ तो व्हाइट हो जाती है और फिर आप हटाओ तो दोबारा रेड हो जाती है, यानी ब्लड उधर से चला जाता है, ब्लांचिंग हो जाती है जिसको कहते हैं, ब्लांचिंग एरेथीमा होता है कि आप दबाओ तो लाल जगह व्हाइट होगी, आपने फिर हटाया तो दोबारा उधर खून आया लाल होगी। फर्स्ट डिग्री बर्न में ब्लड सप्लाई और कैपिलरीज और आपका सारा कुछ इंटैक्ट है, इसलिए वो ब्लांचिंग एरेथीमा होता है। सेकेंड डिग्री में इसमें नॉन ब्लांचिंग एरेथीमा होगा, यहाँ फिक्स हो गई अपनी जगह, इसको आप दबाओगे चटा नहीं होगा, ये उसी तरह रहेगा। एंड दिस विल बी पेनफुल, दिस विल ऑलवेज हील विद स्कारिंग, एंड यू हैव टू यूजुअली आपको कोई और रिकंस्ट्रक्टिव मेजर्स भी अप्लाई करने पड़ सकते हैं इसमें। ओके, देन कम्स द थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न में क्या है कि आपका डर्मिस भी पूरा गया, एपिडर्मिस ऑफ कोर्स जाएगा ही जाएगा नीचे, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स, बोन्स, उधर तक आप पहुंच गए हो। इसमें क्या होगा, इसमें ये आपको नजर आ रहा होगा, स्किन जली हुई है, स्किन के नीचे स्किन शाइनी हुई हुई है, लस्टर आया हुआ है, लाइफलेस हुई हुई है, कोई एक्सपेंस उसकी वो इलास्टिसिटी खत्म हुई हुई है, नीचे ब्लड वेसल्स आपको जाती हुई कोगुलेटेड ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं जिसके अंदर खून जल के जमा हुआ है, साइड पे एक्स्ट्राविजेशन ऑफ ब्लड भी हुई है जिसकी वजह से फिक्स्ड स्टेनिंग मॉटलिंग हुई हुई है टिश्यू की, और इन सिवियर ऑफ केसेस ये देखो, ये मैं आपको बाद में इन सिवियर ऑफ केसेस ये भी हुआ होता है, हड्डियां भी जली नजर आ रही हैं, टेंडन्स भी जले हुए नजर आ रहे हैं, मसल्स भी जले हुए नजर आ रहे हैं, जॉइंट खुले हुए पड़े हुए हैं। दिस इज थर्ड डिग्री एंड सम पीपल कॉल इट एज फोर्थ। अब ये पिक्चर देखो, व्हाट इज दिस, जो मैं आपको कहता हूँ ना, यूजुअली व्हेन द इन क्लिनिकल सिनेरियो इन प्रैक्टिकल लाइफ यूजुअली बर्न्स आर नॉट स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू फर्स्ट डिग्री, नॉट स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू सेकंड और थर्ड। इस पिक्चर में देखो, सेंटर में ग्रे जला हुआ शाइनी इलास्टिसिटी नहीं है, इन इलास्टिक टिश्यू है, थर्ड डिग्री बर्न जो डर्मस के नीचे तक जला हुआ है। उसके साइड पे आ जाओ तो थोड़ा कम रेडिश पिंकिश एरिया है जो कि डार्क रेड सा हो जाता है जाके, ये सेकंड है।
डिग्री बर्न। उसके आगे साइड पे और चले जाओ तो हल्की सी स्किन आपको नजर आ रही है, कहीं छिली हुई है कहीं नहीं छिली हुई है, उसके इर्द गिर्द रेडनेस, और उसके और आगे चले जाओ तो नॉर्मल स्किन आ जाती है। तो दिस इज फर्स्ट डिग्री। तो सेंट्रल जोन, इंटरमीडिएट जोन, तो यानी एक सेंटर में वाइट टिश्यू हुआ है जो कि जल गया है, उसको हटाना पड़ेगा। और साइडों पे, बिल्कुल एक्सट्रीम साइडों पे चले जाओ तो वो टिश्यू है जो बचा हुआ है। दरमियान में कुछ है जो बचा हुआ है और कुछ बचा हुआ नहीं है, ये ग्रे जोन है। ये वो ग्रे जोन है जिसको अगर आप प्रॉपरली रिहाइड्रेट करो और मैनेज करो तो बचाया जा सकता है। मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी एंड ट्रॉमा को रिड्यूस किया जा सकता है। सर्जरी इज ऑल्सो कंट्रोल ट्रॉमा। चोट तो आप नाइफ से आप कट तो दे ही रहे हो ना, इट्स ट्रॉमा। तो ये वो एरिया ग्रे जोन है। सेंट्रल वाले जोन खत्म है, बाहर वाली जोन बची हुई है, दरमियान की जोन है ग्रे जोन, जो बच भी सकती है नहीं भी बच सकती है। अब उसको काटोगे नहीं काटोगे, हाउ टू डिसाइड। इसीलिए आप जब भी बर्न का होता है ना तो आप पहले दिन ही नहीं काट के फेंक देते सब कुछ। एक आधा दिन आप ट्राई करते हो, जब तक डिमार्केशन ना हो जाए, प्रॉपरली चीज़ का पता ना चल जाए, आप रिहाइड्रेट करके सारा कुछ चीज़ों का ख्याल रख के आप कोशिश करते हो कि जो ग्रे जोन है इसको साल्वेज किया जा सके, बचाया जा सके, ताकि मॉर्बिडिटी कम हो। ठीक है, क्योंकि इसका मकसद तो यही है ना, सबसे पहले ये होता है कि पेशेंट की लाइफ बचाना, लाइफ बचाने के बाद होता है फंक्शन बचाना, कि वो काम कर सके उस हाथ से या उस टांग से। एंड द थर्ड थिंग इज देन एस्थेटिक्स, कि आप उसको कितना नॉर्मल लुकिंग बना सकते हो। तो इन चीज़ों, तीनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो आई गेस अभी आपके लिए यही है कि तो बर्न के साथ चेंजेस क्या आ रही होती हैं बॉडी में। बॉडी में चेंजेस ये आ रही होती हैं कि एक्यूट चेंज होती है फिजियोलॉजी थोड़ी सी इसकी। एक्यूट चेंज होती है कि जब हीट हुई, कोगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ, टिश्यू डैमेज हुआ, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, और ये सारी चीज़ें निकली कि ब्लड कैपिलरी में से और वेसल्स में से, जिसकी वजह से इनकी परमेबिलिटी, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हुई। कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, ब्लड वेसल के अंदर जो सारे फैक्टर्स ये ट्रेवल कर रहे थे, ये ब्लड वेसल से निकल के बाहर आ गए इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, इन द थर्ड स्पेस। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आएंगे तो वहां के ट्रैप हो गए, तो उससे क्या होगा, सोजिश होगी। वो अपने साथ पानी भी और खींच के लाएंगे, कैपिलरी ज़्यादा लीकी हुई है, और इंटरल्यूकन्स आएंगे और ये चीज़ें आएंगी, जिसकी वजह से आपका अल्टीमेटली इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट कम होता जाएगा। उसकी वजह से आपका क्या है, आपका हीमोडायनामिकली आप अनस्टेबल होते जाओगे, थर्ड स्पेस में चला गया, फ्लूइड इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में कम रह गया, जिसकी वजह से सर्कुलेशन कम हुई, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, सर्कुलेटरी शॉक हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, और ब्रेन को पूरी सप्लाई नहीं ऑक्सीजन जाएगी तो ब्रेन डेथ भी हो सकती है, मतलब बेसिकली इट कैन किल। ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज द वेस्कुलर एंडोथेलियम, जो मैं आपको बताया कि परमेबल हो गई, तो बात हमने कर ली। ठीक है, सिक्वेस्ट्रेशन हुई, शिफ्ट हुआ, तो उससे क्या होता है, स्टेजेस आते हैं। पहला है स्टेज ऑफ शॉक, जिसमें सारा पानी निकल गया, एंड इट लास्ट फॉर 2 to 3 days आफ्टर द बर्न। वेजो एक्टिव फैक्टर्स जो हमने बात की, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस सारी आ रही हैं, और 2 से 3 दिन तक यही होता रहता है। 2 से 3 दिन के बाद क्या होता है, बॉडी अटेम्प्ट करती है अपने आप को नॉर्मल करने के लिए। नॉर्मल करने के लिए वो क्या करेगी, वो थर्ड स्पेस में से वापस इंट्रावास्कुलर में फ्लूइड ले जाना चाहेगी। ठीक है, होम्योस्टेसिस मेंटेन, हीमोस्टेसिस नहीं, होम्यो, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि स्किन का पार्ट टेम्परेचर कंट्रोल भी तो है ना, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी तो है ना, ये सारा लॉस हुआ हुआ स्किन जब जली हुई है। तो बॉडी अपनी होम्योस्टेसिस कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, पहले 2-3 दिन स्वेलिंग हुई, पानी बाहर निकला, सारा कुछ रेडनेस हुई, दर्द हुई, सारा कुछ हुआ, सेकंड, और ये 2-3 दिन तक जारी रहता है। उसके बाद स्टैग्नेंट फेज आता है, फिर बॉडी अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती है, जिसमें से पानी वापस एब्जॉर्ब करते हैं इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में, जिसकी वजह से स्वेलिंग कम होना शुरू होती है, एरिथेमा कम होना शुरू होता है, आपकी सर्कुलेटरी शॉक बेहतर होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद थर्ड, और ये 1 से 2 हफ्ते तक लास्ट करते हैं। इसके बाद आ जाता है हीलिंग फेज, विच लास्ट फॉर अप टू 6 months to 1 year, जिसमें क्या है, टाइप 1 कॉलेजन, टाइप 3 कॉलेजन में चेंज हो रहा होगा, आपका जो स्कार है वो मेच्योर हो रहा होगा, आपका फंक्शन नॉर्मलिटी की तरफ वापस आ रहा होगा, और इसलिए ये प्रोसेस ऑफ हीलिंग टेक्स अप टू अ ईयर। ठीक है, इसलिए जब पहले पेशेंट आपके पास आता है ना, तो अगर आप सड़क पे भी चल रहे हो या आप इमरजेंसी में भी बैठे हो, आपके पास पहला पेशेंट आया, आपने देख रहे हो एज ए डॉक्टर कि उसे आग लगी, उधर आग लगी हुई एक पेशेंट जल रहा है, तो क्या करोगे।
फर्स्ट थिंग यू आर गोना डू इज, पेशेंट को सांस नहीं आ रहा, बेहोश पड़ा है, पेशेंट को जाके बचाना शुरू हो जाओगे, उसको मतलब सीपीआर करना शुरू हो जाओगे, उसको सांस देना शुरू हो जाओगे, आईवी लाइन लेना शुरू हो जाओगे, क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। सबसे पहले आग से दूर करोगे। सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या है एक्यूट ट्रॉमा का? आर यू सेफ? आप खुद सेफ होगे तो आप पेशेंट को बचा सकोगे ना। आप खुद सेफ भी नहीं हो तो उधर दो पड़े होंगे एक ही वजह जल रहे हैं। तो आर यू सेफ? इज द पेशेंट सेफ? इज द एनवायरमेंट सेफ? आग लगी हुई, आप आग में छलांग मार के, यू आर नॉट अ फायर फाइटर, यू कैन नॉट गो इन एंड सेव द पेशेंट। वो बाहर आएगा तो आप कुछ कर सकोगे ना। तो इसलिए सबसे पहले अगर इस तरह का कुछ हो तो सबसे आपने पहले देखना है कि आप सेफ हो, जो सामने पेशेंट है वो सेफ है, एनवायरनमेंट सेफ है। 1 फुट दूर आगे साइड पर आग लगी हुई है तो वहां बैठ के तो आप पेशेंट को रिससिटेट नहीं करोगे ना। फर्स्ट यू ड्रैग द पेशेंट अवे टुवर्ड्स द सेफ्टी, कि जहां उसका नुकसान ना हो कुछ, ठीक है ना। उसके बाद आप सारा असेसमेंट वगैरह करोगे ना, बॉडी सरफेस एरिया करेंगे जो मैंने कहा वॉलेस रूल ऑफ 9 से, डेप्थ का हम अंदाजा लगाएंगे ऑफ द बर्न का, ये जो हमने फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री पढ़ा है। और इसका वॉलेस रूल ऑफ 9 जो था ना, 9% की हम बात करते हैं, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम है ना वो है कि वो इट हेल्प्स कि हमने फ्लूइड कितना देना है पेशेंट को, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, रीनल फेलियर से बंदा जाता है। तो वो नॉट एट योर स्टेज आगे जाके आता है, लेकिन उसका ये फायदा होता है। लेकिन आप सबसे पहले क्या करोगे, रिमेंबर आइस और कोल्ड वाटर से आप उसको सोक करोगे 10 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स तक, ठीक है ना। अगर 25% से कम है सरफेस एरिया, लेकिन ख्याल रखोगे हाइपोथर्मिया ना हो। लेकिन इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अगर पेशेंट इलेक्ट्रिक बर्न है ना, करंट लग रहा है, तो ये देख लेना कि उसे ठंडा वाटर सो करने से पहले कि उधर कोई करंट भी चल ना रहा हो। और दूसरा आपने ये देखना है कि केमिकल बर्न्स यानी एसिड और एल्कलीज जो है ना, सर्टेन केमिकल बर्न्स, उन पे आप पानी नहीं डालते हो, आप उसको और वर्सन कर देते हो। तो अगर वो अनलेस एंड अनटिल फायर फ्लेम बर्न टाइप की चीज नहीं है तो आप ये नहीं करते हो, ठीक है। और सबसे ज्यादा आप जो फर्स्ट किलर क्या है, सांस, एयरवे बंद हुई, सांस आना बंद हुआ, पेशेंट उसी वक्त मर जाएगा। सर्कुलेशन तो थोड़ी देर कंपनसेट करेगी ना, आपको इतना टाइम देगी कि आप हॉस्पिटल पहुंच सको, 2 लार्ज बोर आईवी लाइंस लेके उसको फ्लूइड दो ताकि वो डिहाइड्रेशन में ना जाए, सेप्ट वो शॉक में ना जाए, उसका सर्कुलेटरी वॉल्यूम ठीक रहे। लेकिन इस केस में ये है कि सबसे पहले आपने देखना है कि उसकी एयरवे, आपके लंग्स ठीक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन लंग्स तक आपने ऑक्सीजन ही नहीं पहुंची तो क्या फायदा। और इसलिए बर्न पेशेंट्स को आप हाई सस्पेशन ऑफ इनहेलेशनल इंजरी लगते हुए एंड यू ट्राई टू शिफ्ट सच पेशेंट्स टू द हॉस्पिटल and the permanent care as soon as possible. Yeah. Sorry guys. Okay. हर जो पेशेंट जला हुआ है ना उसको टेटनस जरूर लगाना है, जिस तरह सड़क पे गिरने वाले हरे को लगाते हो, इट्स अ मस्ट, ठीक है। हर पेशेंट को आप यूजुअली जो है ना, बर्न पेशेंट आते ही अगर एक्यूटली पहले 1-2 दिन में, पहले दिन में मरते हैं ना, पहले चंद घंटों के अंदर सबसे पहले वो इनहेलेशनल इंजरीज वगैरह से मरते हैं। और 5th-6th डे पे ज्यादा पेशेंट्स डाई, द वंस हु आर बर्न्ड दे डाई। क्यों? जिनका ज्यादा एक्सटेंसिव बर्न है, क्योंकि स्किन जो है ना एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी तो है ना अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड एक्सटर्नल कंटामिनेंट्स। तो 3rd-4th डे में पहले हफ्ते में जब जाके ना 7 डे के करीब, जब भी जो मैंने आपको बताया कि वो जो स्टेज आता है जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स जो है वो वापस इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट, थर्ड स्पेस से दोबारा इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड जाना शुरू होता है, तो तब वो अपने साथ इन्फेक्शन और इस तरह की चीज़ें भी ले जा सकता है। और सिस्टेमिक जो होता है सेप्टिसीमिया में, सेप्टिक शॉक में पेशेंट के जाने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप उसको एंटी प्रोफिलेक्टिक एंटीबायोटिक्स शुरू करा देते हो, इन्फेक्शन होने का इंतजार नहीं करते, पहले से शुरू करा देते हो। और आप उसको खूब सारा फ्लूइड देते हो ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो और वो शॉक में ना जाए। और डिहाइड्रेशन का कैसे पता चलेगा हम उसे सही पानी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं कम दे रहे हैं। ज्यादा दोगे तो उसके लंग्स वाइट हो जाएंगे, हार्ट पे ओवरलोड आएगा, दूसरी चीजें खराब हो जाएंगी, हार्ट पेशेंट है तो हार्ट फेलियर हो जाएगा। आप कम दे रहे हो तो उसकी हीलिंग वगैरह सारा कुछ आपका वो एडिक्वेट नहीं होगा। तो सबसे सिंगल बेस्ट इंडिकेटर कि आप उसको फ्लूइड्स ठीक दे रहे हो इज द यूरिन आउटपुट। बाकी चीजें भी हैं,
आंखें धसी हुई है नहीं धसी हुई है, स्किन कोल्ड क्लैमी है या नहीं है, स्किन पिंच होके खड़ी तो नहीं रह जाती जितना डिहाइड्रेटेड बहुत से लोगों में है। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन लेट हो जाए तो पेशेंट ड्राउजी और डिसोरिएंटेड भी हो सकता है, कॉमेटोज भी हो सकता है। लेकिन मॉनिटरिंग के लिए एक सिंगल पैरामीटर अगर मैं आपसे कहूँ ना कि पेशेंट्स हाइड्रेशन स्टेटस चेक करने का कि आपको एडिक्वेट फ्लूइड दे रहे हो ना नहीं दे रहे हो, दैट इज ओनली योर यूरिन आउटपुट. Urinary output should be 0.5 to 1 ml per kg per hour. यानी एक घंटे में ना 0.5 अगर आप जहन में रखते हो ना 0.5 टू 1, एक 70 के जी मैन हम नॉर्मली बात करते हैं ना, तो आपका 35 टू 40 से ऊपर होना चाहिए ml पर आर यूरिन आउटपुट. इसका मतलब है आप सही दे रहे हो. इससे कम आ रहा है इसका मतलब है आप फ्लूइड कम दे रहे हो. अगर ये 35-40 के बजाय 200 आ रहा है तो इसका मतलब है कि थोड़ा ना फ्लूइड कंट्रोल कर लो. सही है. और इसके साथ दूसरा हम बात करते हैं कि पेन बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक देना ज़रूरी है. इसमें मॉर्फिन ज़्यादातर या मॉर्फिन बेस्ड डेरिवेटिव्स दिए जाते हैं क्योंकि उनका एक और एडेड एडवांटेज भी होता है. एक तो ये कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पेन किलर्स. अगर हेड इंजरी नहीं है, पेशेंट ड्राउजी नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो आप मॉर्फिन बेस्ड मॉर्फिन डेरिवेटिव्स या मॉर्फिन ही देते हैं एज अ पेन किलर. इसका एक और फायदा भी होता है, ये पल्मोनरी एडीमा में लंग्स के अंदर जो हॉट गैसेस वगैरह जो पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं जो कि इंटरफेस बन जाता है बिटवीन योर एक्सचेंजिंग मेम्ब्रेन्स, तो उसमें भी ये हेल्प करता है. सही है. तो गाइज आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर सेकेंड ईयर. बाकी चीज़ें कि कौन सा फ्लूइड कितना देना है, दैट वुड कम एट अ लेटेस्ट स्टेज. लेकिन फॉर योर क्लास आई थिंक द मेन थिंग इज कि आपको आना चाहिए कि बर्न है क्या, सिर्फ आग लगने को बर्न नहीं करते, अब आपको पता चल जाना चाहिए. बर्न क्या है? कॉगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू. जिस चीज़ से मर्जी हो जाए, चाहे वो आग से हो चाहे किसी और से हो. ठीक है. बर्न क्या है? बर्न का सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, बर्न की डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, और बर्न की मैनेजमेंट क्या करते हैं. मैनेजमेंट में जो बेसिक चीज़ है कि इमरजेंसी मैनेजमेंट में आपने क्या करना है और बाद में क्या करना है. बेसिक इमरजेंसी मैनेजमेंट के खतरे से बाहर करके जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना है और उस उधर जाके आपने सबसे पहले उसको पेन रिलीफ देना है और फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है. ओके क्लास, आई होप you must have taken some take home message out of it, and do read this topic because this is one of the most important topics you'll be encountering as a practical doctor in the future to come. Okay, good luck class. See you soon then, and I hope uh, the corona thing settles and you come back to the hospital and get your proper education done. Okay, bye bye. जी हो गया. ओके, एनी क्वेश्चंस कि किस तरह पता चलेगा मुझे. Yes. Is there anything you would like to ask? You can write it to me on the chat, and I can answer some question. अगर कोई basic question या if there's any mystery to it, then you may ask the question. अच्छा, फ्लूइड कौन सा देते हैं? दो तीन तरह के फ्लूइड्स होते हैं. ब्लड दोगे, नॉर्मल सलाइन दोगे, या प्लाज्मा एक्सपेंडर टाइप की चीज़ें दोगे. सबसे ज़्यादा होता है कि आप फ्लूइड्स में देते हो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है. इसी नॉर्मल सलाइन आप ज़्यादा देते हो, रिंगर लैक्टेट देते हो, जो कि इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट को इंक्रीज करे रादर देन द एक्स्ट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट. ठीक है. आपने थर्ड स्पेस में तो नहीं आपको चाहिए ना. और दूसरे है कि ऐसे पेशेंट के आपने शुगर लेवल का भी ध्यान रखना होता है. ठीक है. इज देयर एनी क्वेश्चन एनीवन? ओके.
Okay. Acha, any question? Anybody? Any question you want to ask? Oops. ये हम बात कर रहे थे, the thing I was telling you about the adequacy, how to, कि हम फ्लूइड हम दे रहे हैं तो हम सही दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं. पेरिफेरल ब्लड प्रेशर जो है वो आपको इंडिकेटर देगा, लेकिन ये सारे वो नहीं है. जो एक सिंगल मोस्ट था वो मैंने आपको बताया है, दैट वाज यूरिन आउटपुट. पहले आप देखो कि ब्लड प्रेशर उसका मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, जो कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पहले कम हुआ हुआ होगा, क्योंकि आपका फ्लूइड लॉस फ्रॉम द इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट इनटू द थर्ड स्पेस हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, स्किन से भी आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं हो रहा, जो वाटर रिटेन होना था वो नहीं हो रहा. तो इसलिए आपका अगर आप सही तरह रिहाइड्रेट उसको कर रहे हो तो उसका ब्लड प्रेशर बेहतर होना शुरू हो जाएगा. हार्ट रेट उसका स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा, जो हार्ट कंपनसेट कर रहा था कि जो उसने वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड और ऑक्सीजनेशन पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता, उसका रेट कम हो जाएगा. यूरिन आउटपुट बेस्ट इंडिकेटर, हमें जैसे हमने पहले बात की, अगर आपने सेंट्रल सीवीपी लाइन डाली है, सेंट्रल लाइन, तो आप डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हो वेज प्रेशर्स की, कैपिलरी प्रेशर की, लेकिन दिस इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर और शायद एक्यूटली इतनी जल्दी आप ना कर सको. तो ठीक है, अब जो है फ्लूइड कितना देना है आपने, हमने ये तो बात कर ली कि नॉर्मल सलाइन हमने देना है इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में जो रहे, क्योंकि हमने इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट को बिल्ड करना है, राइट. तो हमने फ्लूइड जो देना है ना, उसके लिए पहले 24 घंटे में जो हमने फ्लूइड देना है उसके लिए पार्कलैंड फार्मूला है, जिसमें वॉलेस रूल ऑफ 9 याद आता है. ठीक है, उसका क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ बर्न मल्टीप्लाई बाय वेट इन केजी. 70 किलोग्राम का बंदा है, ठीक है, 10% बर्न है, और इस 10% को यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लोगे तो जो आएगा ना, वो आपने देना है फ्लूइड 24 घंटे के अंदर. पहले 4 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ बर्न मल्टीप्लाई बाय वेट इन केजी बंदे का. इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो फिगर आएगा, फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 3 लीटर, 3000 ml आ गया आपके पास, जो कि 3 लीटर बन गया, ठीक है ना. तो अब ये 3 लीटर आपने 24 घंटे में देना है. तो 3 लीटर 24 घंटे में कैसे देना है, देना आपने रिंगर लैक्टेट इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट और रहना, ठीक हो गया. तो इस 3 लीटर में से जो आपने पहला हाफ है यानी 1.5 लीटर, वो आपने पहले 8 घंटे में दे देना है. बाकी का आपका 1.5 लीटर रह गया, वो आपने अगले 16 घंटे में देना है. सो जो आपके पास कैलकुलेशन आई बाय द फार्मूला, पार्कलैंड फार्मूला, जिसमें था कि 4 मल्टीप्लाई बाय बॉडी सरफेस एरिया बर्न्ड परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय वेट इन केजी. तो जो भी आपके पास फिगर आएगा ना, उसका हाफ आपने फर्स्ट 8 आवर्स में देना है आईवी लाइन के थ्रू, और बाकी का जो हाफ है वो नेक्स्ट 16 आवर्स में देना है, जिससे आपका 24 आवर्स का फ्लूइड कैलकुलेशन आ जाएगी. और दूसरा, आपने पेशेंट को यूरिनरी कैथेटर डाला होता है बर्न पेशेंट में, इसीलिए डाला होता है कि आपने उसकी यूरिन आउटपुट देखनी होती है, और वही आप 0.5 to 1 cc पर केजी पर आर का एम कर रहे होते हो. तो अगर 80 केजी का बंदा है तो आपका 1 घंटे के अंदर आना चाहिए 40 कम अज कम, ठीक है ना, 40 सीसी आना चाहिए 0.5 के हिसाब से. तो अगर इससे कम आ रहा है तो इसका मतलब है आप अंडर हाइड्रेट कर रहे हो. अगर 1 से भी ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है आप ओवर हाइड्रेट पेशेंट को कर रहे हो, और ये दोनों चीज़ें दे आर नॉट कंसिडर्ड गुड इन द मैनेजमेंट. क्योंकि हमने बात की थी ना कि ग्रे जोन, कि जब पेशेंट जला है तो सेंटर में तो आपको पता है कि वो एक तो बर्न्ट जोन है ना, वो तो बच ही नहीं सकता टिश्यू. एक साइडों पे नॉर्मल टिश्यू है, लेकिन जो उसके दरमियान में ग्रे जोन है, जो कि लग भी रहा है बच जाए, लग भी रहा है ना भी बचे, तो अगर हम ये प्रॉपर रिहाइड्रेशन ऑफ दैट ऑफ द पेशेंट कर रहे हो तो दिस इज अ थिंग विच कैन रियली हेल्प द पेशेंट, और कि वो जो एरिया जो मर जाना था उसको सैल्वेज किया जा सकता है, ताकि आप एक्सटेंट ऑफ बर्न को पहले से आप कम कर दें. ठीक है, so we've done another thing. Now I guess it's time, and we'll be seeing you next week. It will be some
some other worthy teacher deliver the lecture. And till then, study hard and enjoy yourself. Be safe. Okay, bye.